اے معمولی لکڑہارے، تمہاری یہ مجال کہ ہمارے شاہی شکار کو چھو سکو، کیا تمہیں اپنی موت کا خوف نہیں؟ اس بے زبان کا درد دیکھ کر میرا ایمان مجھے خاموش بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ رحم کی باتیں کرنا آسان ہے مگر سزا بھگتنا بہت مشکل۔ اب گردن شاہی تلوار کے نیچے ہوگی۔ اگر ایک بے گناہ کی جان بچانا جرم ہے تو مجھے یہ سزا منظور ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے جب اونچے پہاڑ اور گھنے جنگلوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں بسا ہوا تھا۔ اسی گاؤں کی تنگ گلیوں میں ایک کچا سا گھر تھا۔ اس گھر میں صادق نام کا ایک نوجوان یتیم لکڑہارا رہتا تھا۔ صادق کے پاس نہ تو ماں کی ممتا کی چھام تھی اور نہ ہی باپ کا مضبوط کندھا تھا۔ اس کے پاس اگر کچھ تھا تو صرف ایک پرانی کلہاڑی اور اس کا وفادار کتا جس کا نام اس نے موتی رکھا تھا۔ موتی صرف ایک جانور نہیں تھا بلکہ صادق کی تنہائی کا ایک لوتا ساتھی اور ہمدرد تھا۔ صادق ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتا تھا۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی چادر اوڑھتا اور کلہاڑی کندھے پر رکھ کر موتی کے ساتھ جنگل کی طرف نکل پڑتا۔ راستے میں جب وہ گاؤں کی خوشحال گلیوں سے گزرتا اور لوگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھتا تو اس کے کلیجے میں ایک ہوک سی اٹھتی تھی۔ اسے اپنی ماں کا وہ چہرہ یاد آتا جو اسے بچپن میں چوم کر ودا کرتی تھی۔ وہ سوچتا کہ کیا کبھی اس کے نصیب میں بھی سکون کی 2 روٹیاں لکھی ہوں گی۔ صادق جنگل میں جا کر کڑی دھوپ میں لکڑیاں کاٹتا اور شام کو انہیں بازار میں بیچ کر چند پیسے کماتا جن سے بمشکل اس کا اور موتی کا پیٹ بھرتا تھا۔ ایک دن جب وہ گھنے جنگل کے اندر ایک سوکھے پیڑ پر کلہاڑی چلا رہا تھا تبھی اسے جھاڑیوں کے پیچھے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ صادق نے کلہاڑی روکی اور ڈری ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ موتی بھی کان کھڑے کر کے اس طرف گھورنے لگا۔ صادق دبے پاؤں جھاڑیوں کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ وہاں ایک ہرن کا بچہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے پیر سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پتھر آ گئی تھیں۔ صادق کا دل موم کی طرح پگھل گیا۔ اسے لگا جیسے یہ ہرن بھی اس کی طرح یتیم اور بے سہارا ہے۔ اس نے فوراً اپنی قمیض کا ایک حصہ پھاڑا اور ہرن کے زخم پر پٹی باندھی۔ اس نے اپنے حصے کا پانی اس بے زبان کو پلایا۔ صادق کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ ہمدردی اسے ایک ایسی مصیبت میں ڈالنے والی ہے جو اس کی زندگی بدل دے گی۔ دراصل وہ ہرن اس ملک کے بادشاہ کی پسندیدہ شکارگاہ سے بھاگ کر آیا تھا۔ جیسے ہی صادق اس ہرن کو سہلا رہا تھا تبھی گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ شاہی سپاہی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے صادق کو گھیر لیا۔ سپاہیوں نے الزام لگایا کہ اس نے شاہی ہرن کو چرانے کی کوشش کی ہے۔ صادق گڑ گڑایا اور ہاتھ جوڑ کر بولا کہ وہ تو صرف اس کی جان بچا رہا تھا، لیکن سپاہی پتھر دل تھے۔ انہوں نے صادق کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور اسے گھسیٹتے ہوئے دربار کی طرف لے جانے لگے۔ موتی اپنے مالک کو مصیبت میں دیکھ کر سپاہیوں پر بھونکنے لگا اور ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ صادق کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اب اس کا کیا ہوگا۔ دربار میں پہنچتے ہی سناٹا چھا گیا۔ اونچا تخت اور اس پر بیٹھا جلال والا بادشاہ جس کی نظریں تلوار سے زیادہ تیز تھیں۔ بادشاہ نے صادق کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور گرج کر پوچھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے شکار کو ہاتھ لگانے کی؟ صادق نے کانپتی آواز میں ساری حقیقت بیان کی اور کہا کہ انسانیت کا تقاضا یہی تھا کہ میں اس بے زبان کی مدد کرتا۔ بادشاہ صادق کی دلیل سن کر خاموش ہو گیا۔ دربار کے وزیر نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ بادشاہ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا کہ ہم تمہاری جان بخش سکتے ہیں لیکن تمہیں ہمارے 3 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ اگر تم نے صحیح جواب دیے تو تمہیں انعام ملے گا اور اگر ناکام رہے تو تمہیں عمر بھر کے لیے کال کوٹری میں ڈال دیا جائے گا۔ صادق کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے ہاں کر دی۔ بادشاہ نے پہلا سوال پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت کیا ہے جو انسان کو کبھی غریب نہیں ہونے دیتی؟ صادق سوچ میں پڑ گیا۔ اسے اپنے گھر کی مفلسی اور بھوک یاد آنے لگی۔ اسے لگا کہ شاید بادشاہ سونے چاندی کی بات کر رہا ہے، لیکن پھر اسے اپنی ماں کی وہ باتیں یاد آئیں جو وہ بچپن میں سنایا کرتی تھیں۔ صادق نے سر جھکا کر کہا کہ اے بادشاہ سلامت، دنیا کی سب سے بڑی دولت وہ صبر اور شکر ہے جو انسان کو تنگ دستی میں بھی کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ جواب سن کر دربار میں کانا پھوسی ہونے لگی۔ بادشاہ نے گردن ہلائی اور کہا کہ تمہارا پہلا جواب ہمیں پسند آیا۔
अब दूसरा सवाल सुनो, वह कौन सा जख्म है जो कभी नहीं भरता और जिसे इंसान ताउम्र अपने साथ लेकर फिरता है? यह सवाल सुनते ही सादिक की आंखों के सामने अपने बचपन का वो मंजर आ गया जब गांव के रईस ज़ादे उसे यतीम कहकर पुकारते थे और उसके फटे कपड़ों का मजाक उड़ाते थे। सादिक का गला रुंध गया। उसने कहा कि हुजूर, वह जख्म जुबान की कड़वाहट और अपनों की बेरुखी का है जो रूह के अंदर तक उतर जाता है। तलवार का जख्म तो भर जाता है, लेकिन कड़वे बोलों का घाव इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। बादशाह के चेहरे का जलाल थोड़ा कम हुआ और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसे लगा कि यह मामूली लकड़हारा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि जिदर की जिंदगी की ठोकरों ने इसे दाना बना दिया है। अब तीसरा और सबसे मुश्किल सवाल बाकी था। बादशाह ने कहा कि तीसरा सवाल यह है कि वह कौन सी चीज है जो खुदा को सबसे ज्यादा पसंद है और जिसके लिए वह बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देता है। सादिक इस सवाल पर खामोश हो गया। वह सोचने लगा कि क्या वह नमाज है या रोजा है या फिर हज है। उसे लगा कि शायद वह कोई बहुत बड़ी इबादत होगी। तभी उसे अपने पैरों के पास बैठे मोती का ख्याल आया, जो भूखा होने के बावजूद अपने मालिक की हिफाजत के लिए वहां खड़ा था। उसे वह हिरण याद आया जिसके दर्द ने उसे अपनी गरीबी भुला दी थी। सादिक ने लंबी सांस ली और बोला कि हुजूर, वह चीज एक टूटे हुए दिल की आह और किसी बेसहारा पर किया गया रहम है। खुदा को अपने बंदों की खिदमत और मखलूक पर तरस खाना सबसे ज्यादा पसंद है। पूरा दरबार सन्न रह गया। वजीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। बादशाह अपनी जगह से उठा और सादिक के करीब आया। उसने सादिक के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुमने आज हमें वह सबक सिखाया है जो बड़े बड़े आलिम नहीं सिखा सके। लेकिन बादशाह के दिल में अभी एक और आजमाइश बाकी थी। उसने कहा कि तुमने जवाब तो सही दिए आए, लेकिन हम तुम्हें अभी आजाद नहीं करेंगे। तुम्हें कल सुबह तक हमारी कैद में रहना होगा और कल हम फैसला करेंगे कि तुम्हें क्या इनाम देना है। सादिक को दोबारा काल कोठरी में ले जाया गया। मोती जेल के दरवाजे के बाहर बैठ गया और पूरी रात रोता रहा। सादिक को समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह के मन में क्या चल रहा है। उसे लग रहा था कि शायद बादशाह उसे आजमाना चाहता है या फिर उसके साथ कोई नया खेल खेल रहा है। कोठरी की दीवारों से सीलन की बदबू आ रही थी और सादिक को अपनी जिंदगी की हर कड़वी याद सता रही थी। उसने सोचा कि क्या सच बोलना ही उसकी खता थी। रात के आखिरी पहर में जब सब सो रहे थे, तभी जेल का भारी दरवाजा धीरे से खुला। सादिक ने देखा कि एक नकाब पोश शख्स अंदर दाखिल हुआ है। उस शख्स के हाथ में एक थैली थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई लग रही थी। नकाबपोश ने सादिक से कहा कि लकड़हारे, तुम बहुत खुशनसीब हो। बादशाह तुम्हें कल मारना चाहता है क्योंकि तुमने उसके वजीर को नीचा दिखाया है। ये लो सोने के सिक्के और चुपचाप यहां से भाग जाओ। मैंने पहरेदारों को हटा दिया है। सादिक के सामने जिंदगी और मौत का सवाल था। एक तरफ बेहिसाब दौलत थी और दूसरी तरफ वतन छोड़कर भागने की जिल्लत। सादिक ने उस थैली की तरफ देखा और फिर उस शख्स की आंखों में झांका। उसने कहा कि अगर मेरी मौत लिखी है तो मैं उसे खुशी से गले लगाऊंगा, लेकिन चोरों की तरह भागकर अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगा। बादशाह ने मुझ पर यकीन किया है और मैं उस यकीन को नहीं तोड़ूंगा। नकाबपोश ने अपना नकाब हटाया तो सादिक के पैरों तले जमीन निकल गई। वह खुद बादशाह सलामत थे। बादशाह ने कहा कि सादिक, हम तुम्हारी ईमानदारी और हौसले को परख रहे थे। तुम सिर्फ बातों के धनी नहीं बल्कि किरदार के भी पक्के हो। बादशाह ने सादिक को गले लगाया और उसे अपने महल में रहने की दावत दी। सादिक को महल में ले जाया गया और उसे आलीशान कपड़े पहनाए गए, लेकिन सादिक का दिल अभी भी बेचैन था। उसे अपने गांव की वो मिट्टी और वो जंगल याद आ रहे थे। अगले दिन सुबह जब सादिक सोकर उठा तो उसने देखा कि महल के बाहर बहुत भीड़ लगी है। गांव के लोग वहां जमा थे और उनके चेहरे पर खौफ था। सादिक को पता चला कि उसके गांव पर एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है। एक पड़ोसी मुल्क की फौज ने गांव की तरफ कूच कर दिया है और बादशाह को इस बात की खबर तक नहीं थी। सादिक ने फौरन बादशाह के पास जाने की कोशिश की, लेकिन वजीर ने उसे रोक दिया। वजीर सादिक की तरक्की से जलता था और वह उसे रास्ते से हटाना चाहता था। वजीर ने सादिक पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया।
और कहा कि यह लकड़हारा उस दुश्मन फौज का जासूस है। सादिक की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसे लगा कि एक बार फिर उसकी किस्मत उसे दगा दे रही है। बादशाह वजीर की बातों में आने लगा, क्योंकि जंग के माहौल में शक की गुंजाइश ज्यादा होती है। सादिक को फिर से बेड़ियों में जकड़ दिया गया, लेकिन इस बार उसके साथ मोती नहीं था। मोती कहीं गायब हो गया था। सादिक को एक अंधेरी कोठरी में फेंक दिया गया, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती थी। वह वहां बैठकर रोने लगा और खुदा से फरियाद करने लगा कि ऐ मालिक, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी कोठरी की छोटी सी खिड़की से उसे मोती के भौंकने की आवाज आई। सादिक ने ऊपर देखा तो मोती के मुंह में एक कागज का टुकड़ा था। मोती ने वह कागज खिड़की के अंदर गिरा दिया। सादिक ने कांपते हाथों से वह कागज खोला। उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर सादिक के होश उड़ गए। यह वजीर की उस साजिश का सबूत था जो उसने दुश्मन फौज के साथ मिलकर रची थी। वजीर ने मुल्क को बेचने का सौदा किया था और सादिक को फंसाया था ताकि कोई उसकी राह में रोड़ा न बन सके। सादिक अब परेशान था कि वह यह सच बादशाह तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि वह तो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और पहरेदार वजीर के वफादार थे। सादिक ने मोती की तरफ देखा और उसे एक खास इशारा किया जो वह बचपन में खेल खेल में किया करता था। मोती समझ गया और वह बिजली की तेजी से महल की तरफ दौड़ा। उसे पता था कि उसे कहां जाना है। उधर बादशाह अपनी फौज को तैयार कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आस्तीन का सांप उसके ठीक बगल में खड़ा है। जंग शुरू होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे और सादिक की जिंदगी एक धागे से लटक रही थी। मोती महल की ऊंची दीवारों और संगमरमर के रास्तों पर अपनी जान की बाजी लगाकर दौड़ रहा था। उसके पंजे पत्थरों पर रगड़ खा रहे थे, लेकिन उसे सिर्फ सादिक का वह चेहरा याद था जो सलाखों के पीछे बेबसी से उसे देख रहा था। उधर दरबार में वजीर बड़ी चालाकी से बादशाह को उकसा रहा था कि सादिक को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए ताकि दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएं। बादशाह जहनी कश्मकश में मुब्तला था। उसे सादिक की मासूमियत पर यकीन था, लेकिन वजीर के पेश किए गए झूठे गवाहों ने उसे शक के घेरे में डाल दिया था। तभी अचानक दरबार के भारी दरवाजों के बीच से मोती अंदर दाखिल हुआ। पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की और उस पर लाठियां तानी, लेकिन वह किसी के हाथ नहीं आया। मोती सीधा बादशाह के तख्त के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। बादशाह ने जब देखा कि यह वही कुत्ता है जो सादिक के साथ रहता था, तो उसने पहरेदारों को पीछे हटने का हुक्म दिया। मोती ने अपनी गर्दन झटकी और वह कागज का दूसरा टुकड़ा जो उसने सादिक से लिया था, बादशाह के कदमों में गिरा दिया। बादशाह ने जैसे ही वह कागज उठाया, वजीर के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं और उसने पीछे हटने की कोशिश की। बादशाह ने जब वह तहरीर पढ़ी तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उस कागज पर दुश्मन सेना के सेनापति की मुहर थी और वजीर के दस्तखत थे, जिसमें किले का गुप्त रास्ता बताने का वादा किया गया था। बादशाह ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और वजीर की गर्दन पर रख दी। वजीर के पास अब छिपने की कोई जगह नहीं थी। उसने खौफ के मारे अपना जुर्म कबूल कर लिया। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि सादिक को पूरे सम्मान के साथ काल कोठरी से बाहर लाया जाए और वजीर को उसी की जगह जंजीरों में जकड़ दिया जाए। सादिक जब दरबार में पहुंचा तो उसकी हालत गैर थी। उसके पैरों में बेड़ियों के निशान पड़ चुके थे और भूख प्यास से उसका चेहरा उतर गया था। बादशाह तख्त से नीचे उतरा और सादिक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि ऐ नेक नौजवान, आज तुमने और तुम्हारे इस वफादार जानवर ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि इस पूरे मुल्क को गद्दारी की आग में जलने से बचा लिया। सादिक की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मोती को गले लगा लिया और उसे चूमने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेजुबान जानवर ने उसकी जिंदगी में इतना बड़ा करिश्मा कर दिखाया है। बादशाह ने ऐलान किया कि आज से सादिक इस सल्तनत का खास सलाहकार होगा और उसे रहने के लिए एक आलीशान हवेली दी जाएगी। लेकिन सादिक का दिल तो अभी भी उस पुरानी झोपड़ी और उन यादों में अटका था जहां उसने अपनी यतीम जिंदगी गुजारी थी। उसने बादशाह से दरख्वास्त की
कि उसे दौलत नहीं चाहिए, बल्कि वह चाहता है कि उसके गांव के उन तमाम गरीब और यतीम बच्चों के लिए एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां उन्हें खाने और तालीम की कमी न हो। बादशाह सादिक की इस दरियादिली पर फिदा हो गया, लेकिन अभी जंग का खतरा टला नहीं था। दुश्मन की फौजें सरहद पर पहुंच चुकी थीं और उन्हें वजीर से मिलने वाले गुप्त रास्तों का इंतजार था। सादिक ने बादशाह को मशवरा दिया कि हमें ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से काम लेना होगा। उसने एक ऐसी तरकीब सोची जो किसी के वहम और गुमान में भी नहीं थी। सादिक ने कहा कि दुश्मन को यह लगने दीजिए कि वजीर की योजना कामयाब हो गई है और हम सो रहे हैं। रात के अंधेरे में सादिक खुद उन रास्तों पर निकला जिन्हें वह बचपन से जानता था। वह जंगल का चप्पा चप्पा पहचानता था। उसने दुश्मन की फौज को एक ऐसी दलदली जगह की तरफ मोड़ने का प्लान बनाया जहां उनके घोड़े और भारी हथियार काम नहीं कर सकते थे। सादिक और मोती उस घने अंधेरे में दुश्मन के कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। हर आहट पर सादिक का दिल धड़क उठता था। उसे डर था कि अगर वह पकड़ा गया तो इस बार कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। रास्ते में उसे वही जख्मी हिरण फिर से नजर आया जिसे उसने कुछ दिन पहले बचाया था। वह हिरण अब ठीक हो चुका था। उसने सादिक को देखकर अपनी गर्दन झुकाई और जैसे उसे रास्ता दिखाने लगा। सादिक को महसूस हुआ कि जब इंसान दूसरों पर रहम करता है तो कुदरत भी उसकी हिफाजत के लिए रास्ते खोल देती है। वह हिरण सादिक को एक ऐसे तंग रास्ते से ले गया जहां से निकलकर वह दुश्मन के सेनापति के टेंट के पीछे पहुंच गया। वहां सादिक ने सुना कि दुश्मन सुबह होते ही गांव पर हमला करने वाले हैं। सादिक ने अपनी जेब से वह मशाल निकाली जो वह साथ लाया था। उसने एक खास जगह पर आग लगा दी जिससे दुश्मन के खेमे में भगदड़ मच गई। उन्हें लगा कि शाही फौज ने उन पर पीछे से हमला कर दिया है। अफरा तफरी में दुश्मन के सिपाही उस दलदली रास्ते की तरफ भागने लगे जिसकी तरफ सादिक उन्हें ले जाना चाहता था। देखते ही देखते दुश्मन की आधी फौज कीचड़ और दलदल में फंस गई। इधर बादशाह की फौज ने सामने से हमला बोल दिया। सादिक अपनी जान जोखिम में डालकर उस अंधेरे में अपनों के लिए लड़ रहा था। जंग के मैदान में चीख पुकार मची थी और तलवारों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। तभी एक दुश्मन सिपाही ने सादिक को देख लिया और उस पर अपनी तलवार तान दी। सादिक के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी थी। वह सिपाही जैसे ही सादिक पर वार करने वाला था तभी मोती उस पर टूट पड़ा। मोती ने सिपाही का हाथ अपने दांतों से पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। सादिक ने वहां पड़ी एक ढाल उठाई और अपनी जान बचाई। सुबह होते होते दुश्मन की फौज हार मान चुकी थी और उनके सेनापति ने घुटने टेक दिए थे। यह जीत किसी तलवार की नहीं बल्कि एक गरीब लकड़हारे की अक्ल और वफादारी की जीत थी। बादशाह ने मैदाने जंग में ही सादिक को गले लगाया और उसे सल्तनत का मुहाफिज का खिताब दिया। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई जाने लगीं और सादिक का नाम हर शख्स की जुबान पर था। लेकिन जब जीत के जश्न के बाद सादिक अपने घर की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि उसकी पुरानी झोपड़ी को किसी ने आग लगा दी थी। वह जलकर राख हो चुकी थी। सादिक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह उस राख के ढेर के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस झोपड़ी में उसकी मां की वह आखिरी निशानी थी जो उसने संभाल कर रखी थी। वह पुरानी फटी हुई चादर और मिट्टी का वह घड़ा जिसमें उसकी मां पानी भरा करती थी, सब कुछ जल चुका था। सादिक को समझ नहीं आ रहा था कि इस जीत का वह क्या करे जब उसकी यादों का घर ही उजड़ गया। तभी उसे राख के ढेर के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने धीरे से वह राख हटाई तो वहां एक पुरानी संदूकची मिली जो जमीन के अंदर दबी हुई थी। यह संदूकची उसके बाप की थी जिसे सादिक ने कभी नहीं देखा था। उसने कांपते हाथों से उस संदूकची को खोला तो अंदर एक पुराना खत और एक सोने की अंगूठी थी जिस पर शाही खानदान का निशान बना हुआ था। सादिक का दिमाग चकराने लगा। उस खत में कुछ ऐसी बातें लिखी थीं जिन्हें पढ़कर सादिक के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे अपनी असलियत के बारे में वह सच पता चला जो उसकी मां ने उसे कभी नहीं बताया था। सादिक उस खत को लेकर सीधा बादशाह के पास जाने के लिए उठा, लेकिन तभी उसके सामने गांव का वह लालची साहूकार आ खड़ा हुआ जिसने उसकी झोपड़ी को आग लगवाई थी। साहूकार के हाथ में भी एक पुरानी वसीयत थी। उसने सादिक को धमकी दी
कि अगर वह इस खत के बारे में किसी को बताएगा तो वह उसकी जान ले लेगा। सादिक एक बार फिर एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। एक तरफ उसके खानदान का छिपा हुआ राज था और दूसरी तरफ वह जालिम साहूकार जो सादिक की बढ़ती शोहरत से जलता था। सादिक को अब फैसला करना था कि वह अपनी पहचान के लिए लड़ेगा या एक बार फिर खामोशी अख्तियार कर लेगा। मोती साहूकार को देखकर गुर्रा रहा था, जैसे वह सादिक को आगाह कर रहा हो कि यह इंसान वजीर से भी ज्यादा खतरनाक है। सादिक ने वह खत अपनी कमीज में छिपा लिया और साहूकार की आंखों में आंखें डालकर कहा कि सच्चाई कभी राख के नीचे नहीं दबती। साहूकार की आंखों में सादिक के लिए नफरत और खौफ का एक अजीब सा मेल था। उसने सादिक की बात सुनकर एक जोर का ठहाका लगाया और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोला कि ऐ मामूली लकड़हारे, तू अभी कल का लड़का है और मुझे सच्चाई का सबक सिखा रहा है। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि जिस जमीन पर तू खड़ा है और जिस हवेली का तू ख्वाब देख रहा है वह सब कागजों पर मेरी मिल्कियत है। सादिक ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से वहां से चल दिया। उसके दिमाग में वह खत हथौड़े की तरह बज रहा था जिसमें लिखा था कि सादिक का बाप कोई आम आदमी नहीं बल्कि इस सल्तनत के पुराने वफादार सिपह सालार थे जिन्हें एक गहरी साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया था। सादिक के कदमों में एक अजीब सी भारीपन थी। वह चलते चलते उस पुराने कुएं के पास पहुंचा जहां वह अक्सर अपनी मां के साथ बैठा करता था। मोती उसके पीछे पीछे चल रहा था और बार बार सादिक का हाथ चाट रहा था, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि वह अकेला नहीं है। सादिक ने कुएं की मुंडेर पर बैठकर वह खत दोबारा खोला। खत में लिखा था कि सादिक के बाप को उसी वजीर के बाप ने मरवाया था जिसने अभी गद्दारी की थी। यह दुश्मनी पीढ़ियों पुरानी थी। सादिक को अब समझ आया कि वजीर उससे इतनी नफरत क्यों करता था। वह सादिक के चेहरे में उसके बाप का अक्स देखता था। सादिक ने फैसला किया कि वह यह सच बादशाह को बताएगा, लेकिन उसे पता था कि साहूकार और वजीर के बाकी बचे हुए साथी उसका रास्ता जरूर रोकेंगे। वह जैसे ही महल की तरफ मुड़ा, 4 नकाबपोश घुड़सवारों ने उसे घेर लिया। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं और उनकी आंखों में सिर्फ खून सवार था। सादिक ने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से थाम ली। उसे लगा कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। नकाबपोशों ने सादिक पर हमला किया। सादिक ने बड़ी फुर्ती से खुद को बचाया और अपनी कुल्हाड़ी से एक हमलावर के घोड़े पर वार किया। घोड़ा बिदक गया और सवार नीचे गिर पड़ा। मोती ने दूसरे हमलावर की टांग पकड़ ली और उसे घसीटने लगा। सादिक जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था, लेकिन वह अकेला था और हमलावर 4 थे। तभी अचानक जंगल की तरफ से वही हिरणों का झुंड वहां आ पहुंचा जिन्हें सादिक अक्सर दाना पानी दिया करता था। उन हिरणों के दौड़ने से इतनी धूल उड़ी कि हमलावरों को कुछ दिखाई देना बंद हो गया। सादिक ने इस मौके का फायदा उठाया और झाड़ियों के रास्ते महल की गुप्त दीवार की तरफ भागने लगा। वह हाँफ रहा था और उसके जिस्म पर कई जगह खरोंचें आई थीं। वह जैसे तैसे महल के पिछवाड़े पहुंचा जहां पहरेदार सो रहे थे। वह दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुआ और सीधा बादशाह के आरामगाह की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बादशाह सलामत गहरी नींद में थे और उनके सिरहाने वही साहूकार खड़ा था जिसके हाथ में एक छोटा सा खंजर था। साहूकार बादशाह को नींद में ही ठिकाने लगाना चाहता था ताकि वह वजीर के साथ मिलकर पूरी सल्तनत पर कब्जा कर सके। सादिक की चीख निकल गई। उसने चिल्लाकर बादशाह को जगाना चाहा, लेकिन साहूकार ने पलटकर सादिक पर खंजर से वार कर दिया। खंजर सादिक के कंधे में जा लगा और खून की धार बह निकली। दर्द की एक लहर सादिक के पूरे बदन में दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने जख्मी हाथ से ही साहूकार का गला दबोच लिया। शोर सुनकर बादशाह की आंख खुल गई। उन्होंने जब अपने सामने यह मंजर देखा तो वह दंग रह गए। पहरेदार भी अंदर आ पहुंचे और उन्होंने साहूकार को दबोच लिया। बादशाह ने सादिक के घाव से बहते खून को देखा और फौरन हकीम को बुलाने का हुक्म दिया। सादिक ने लड़खड़ाती जुबान से वह खत और अंगूठी बादशाह के हाथ में थमा दी। बादशाह जब वह अंगूठी देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सादिक को अपने सीने से लगा लिया और कहा कि यह अंगूठी तो मेरे सबसे अजीज दोस्त और सिपह सालार की है जो बरसों पहले लापता हो गया था। बादशाह ने सादिक को बताया कि वह सालों से
अपने उस दोस्त के बेटे को तलाश रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह उनकी ही सल्तनत में एक लकड़हारा बनकर रह रहा है। सादिक का जख्म गहरा था, लेकिन उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था। उसे अपनी पहचान मिल चुकी थी। अगले दिन दरबार सजाया गया और सादिक को उसका असली हक दिया गया। वह अब सिर्फ एक सलाहकार नहीं, बल्कि सल्तनत का नया सिपहसालार नियुक्त किया गया। साहूकार को कड़ी सजा दी गई और उसकी सारी जायदाद गरीबों में बांट दी गई। सादिक ने सबसे पहले अपने गांव में अपनी मां के नाम पर एक बहुत बड़ा लंगर खाना और यतीम खाना बनवाया। उसने अपनी उस पुरानी कुल्हाड़ी को महल के मुख्य द्वार पर लगवाया, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि उसकी असलियत क्या थी। मोती अब रेशमी गद्दों पर सोता था, लेकिन उसकी वफादारी में कोई कमी नहीं आई थी। वह आज भी सादिक के साथ उसी तरह रहता था जैसे जंगल की उन तंग गलियों में रहा करता था। सादिक की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन एक शाम जब वह अपनी मां की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया, तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा शख्स बैठा रो रहा था। उस शख्स का हुलिया किसी फकीर जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सादिक ने उसके पास जाकर उसका हाल पूछा। उस बूढ़े ने सादिक की तरफ देखा और कहा कि बेटा, तुम अपनी मंजिल तो पा गए हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाप की मौत का असली राज अभी भी इस अंगूठी के पीछे छिपा है? सादिक चौंक गया। उसने पूछा कि आप कौन हैं और आपको यह सब कैसे पता? उस बूढ़े ने अपना दामन फैलाया और कहा कि मैं वह बदनसीब हूं जिसे तुम्हारे बाप ने मरते वक्त यह राज सौंपा था, लेकिन मैं डर के मारे भाग गया था। उसने बताया कि अंगूठी के अंदर एक छोटा सा गुप्त खाना है जिसमें एक नक्शा छिपा हुआ है। वह नक्शा उस खजाने का है जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए तुम्हारे बाप ने एक सुरक्षित जगह पर छिपाया था और जिस पर अब दुश्मन की नजर है। सादिक ने फौरन वह अंगूठी निकाली और उसे ध्यान से देखा। वाकई उसके नीचे एक बारीक सा जोड़ था। जैसे ही उसने वह जोड़ खोला, अंदर से एक बारीक रेशमी कपड़े का टुकड़ा निकला जिस पर अजीबोगरीब लकीरें बनी हुई थीं। सादिक को एहसास हुआ कि उसकी जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नया इम्तिहान शुरू होने वाला है। वह बूढ़ा शख्स अचानक वहां से गायब हो गया, जैसे वह कोई फरिश्ता था या कोई साया। सादिक घर वापस आया और पूरी रात उस नक्शे को समझता रहा। उस नक्शे के मुताबिक वह खजाना उसी पहाड़ की चोटी पर था जहां सादिक बचपन में लकड़ियां काटने जाया करता था। सादिक ने सोचा कि अगर वह खजाना दुश्मन के हाथ लग गया तो इस मुल्क की बर्बादी तय है। उसने बादशाह को यह बात नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि महल में अभी भी वजीर के कुछ जासूस मौजूद हो सकते हैं। उसने चुपके से आधी रात को अपनी कुल्हाड़ी उठाई और मोती के साथ पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। रास्ता बहुत पथरीला और खतरनाक था। हर तरफ जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। सादिक के पास रोशनी के लिए सिर्फ एक मशाल थी जो तेज हवाओं में बार बार बुझ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पैरों की आहट उसे डरा रही थी। वह जैसे ही पहाड़ की एक गुफा के करीब पहुंचा, मोती अचानक रुक गया और घूरने लगा। गुफा के अंदर से एक मध्यम सी रोशनी आ रही थी। सादिक ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। वहां उसने देखा कि सोने के सिक्के और जेवरात नहीं थे, बल्कि वहां पुरानी किताबें और कुछ ऐसी ढालें थीं जिन पर पुराने बुजुर्गों की नसीहतें लिखी थीं। सादिक को समझ आया कि उसके बाप का खजाना दौलत नहीं, बल्कि वह इल्म और वह बहादुरी थी जो इस मुल्क की असली ताकत थी। तभी गुफा का रास्ता एक भारी पत्थर से बंद हो गया। सादिक अंदर फंस चुका था और बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई। वह आवाज उसी बूढ़े फकीर की थी जो उसे कब्र पर मिला था। वह फकीर कोई हमदर्द नहीं, बल्कि वजीर का सबसे बड़ा मोहरा था जिसने सादिक को इस जाल में फंसाया था। सादिक अब उस अंधेरी गुफा में कैद था। गुफा के अंदर की हवा धीरे धीरे भारी होने लगी थी और सादिक को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। पत्थर इतना विशाल और वजनी था कि उसे हिलाना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। बाहर से उस बूढ़े फकीर की शैतानी हंसी रह रहकर गूंज रही थी, जो अब अपनी असलियत जाहिर कर चुका था। उसने पत्थर के पीछे से चिल्लाकर कहा कि सादिक, तूने क्या सोचा था कि तू इतनी आसानी से अपने बाप की विरासत पालेगा? तेरे बाप ने जो राज छुपाया था
वह अब मेरे साथ इस गुफा के बाहर ही दफन हो जाएगा और तू यहाँ तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। सादिक ने अंधेरे में हाथ पांव मारे, लेकिन उसे दीवार के अलावा कुछ महसूस नहीं हुआ। मोती भी घबराकर इधर उधर दौड़ रहा था और अपनी नाक से जमीन सूंघ रहा था। सादिक के दिल में एक पल के लिए खौफ ने घर कर लिया और उसे लगा कि शायद उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसे अपनी माँ की याद आई और वह बचपन याद आया जब वह अंधेरे से डरकर अपनी माँ की गोद में छिप जाता था। उसने सोचा कि क्या उसने इतनी बड़ी जंग सिर्फ इसलिए जीती थी कि वह इस गुमनाम गुफा में दम तोड़ दे। तभी उसकी नजर उस मशाल पर पड़ी जो अब बुझने वाली थी। मशाल की आखिरी टिमटिमाती रोशनी में उसे गुफा की छत पर कुछ दरारें नजर आईं। सादिक को याद आया कि उसके बाप ने खत में लिखा था कि इल्म ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने उन पुरानी ढालों को गौर से देखा जो वहां रखी थी। एक ढाल पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे जो पहाड़ के नक्शे से मेल खाते थे। सादिक ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस ढाल के पीछे वाली दीवार को टटोलना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि दीवार का एक हिस्सा बाकी पत्थरों से थोड़ा अलग और खोखला है। मोती ने भी उसी जगह पर अपने पंजों से मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। सादिक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कुल्हाड़ी का वार उस दीवार पर किया। पत्थर के टुकड़े टूटने लगे और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। सादिक की जान में जान आई। उसे समझ आया कि यह गुफा कोई कैद खाना नहीं बल्कि एक गुप्त रास्ता था जिसे उसके बाप ने मुसीबत के वक्त निकलने के लिए बनाया था। वह रास्ता बहुत तंग था और सादिक को पेट के बल रेंग कर आगे बढ़ना पड़ रहा था। मोती उसके आगे आगे चल रहा था और बार बार पीछे मुड़कर सादिक को देख लेता था। रेंगते रेंगते सादिक के हाथ पैर छिल गए और उसके कपड़े जगह जगह से फट गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद वह गुफा के दूसरी तरफ निकला जो पहाड़ की एक ढलान पर खुलती थी। वहां से नीचे का मंजर देखकर सादिक के होश उड़ गए। उसने देखा कि महल की तरफ जाने वाले गुप्त रास्ते पर मशालों की एक लंबी कतार बढ़ रही थी। यह वजीर के गद्दार साथी और दुश्मन फौज के बचे हुए सिपाही थे जो महल पर आखिरी हमला करने की तैयारी में थे। सादिक को समझ आ गया कि वह बूढ़ा फकीर सिर्फ उसे फंसाने नहीं आया था बल्कि वह सबको गुमराह करके महल के अंदर दाखिल होने का रास्ता साफ कर रहा था। सादिक के पास महल तक पहुंचने का बहुत कम वक्त था। अगर वह मुख्य रास्ते से जाता तो उसे बहुत देर हो जाती। उसने पहाड़ की सीधी ढलान से नीचे उतरने का फैसला किया जो किसी खुदकुशी से कम नहीं था। उसने एक मजबूत बेल को पकड़ा और अपनी कुल्हाड़ी की मदद से नीचे की तरफ सरकने लगा। मोती भी अपनी जान हथेली पर रखकर पत्थरों के बीच से कूदता हुआ नीचे उतर रहा था। रास्ते में एक जगह सादिक का पैर फिसला और वह कई फीट नीचे जा गिरा। उसके सर पर चोट लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा कि वह अब नहीं उठ पाएगा, लेकिन तभी उसे उस जख्मी हिरण की याद आई जिसकी उसने मदद की थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे पुकार रहा है। सादिक ने हिम्मत जुटाई और लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। वह दौड़ने लगा। उसके फेफड़े फटने को हो रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ अपने मुल्क और बादशाह की जान बचाने का फिक्र था। वह महल के पिछले दरवाजे पर पहुंचा जहां पहरेदार गायब थे। सादिक समझ गया कि गद्दारों ने अंदर से दरवाजे खोल दिए हैं। वह सीधा बादशाह के कमरे की तरफ भागा। वहां उसने देखा कि बादशाह तन्हा सो रहे थे और उनके चारों तरफ नकाबपोश शिकारी कुत्तों की तरह घेरा बना रहे थे। सादिक ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपनी कुल्हाड़ी लेकर उन पर टूट पड़ा। एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी और शाही सिपाहियों की तलवारों के बीच मुकाबला शुरू हुआ। सादिक ने एक के बाद एक 3 हमलावरों को जमीन चटा दी। मोती ने भी अपनी वफादारी का हक अदा किया और एक सिपाही का गला पकड़ लिया। शोर सुनकर बादशाह जाग गए और उन्होंने अपनी तलवार उठा ली। सादिक ने चिल्लाकर कहा कि हुजूर गद्दार महल के अंदर आ चुके हैं। बादशाह और सादिक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगे। पूरे महल में कोहराम मच गया। वजीर के साथी अपनी हार करीब देखकर भागने लगे। तभी वह बूढ़ा फकीर वहां पहुंचा जिसके हाथ में एक जहरीला तीर था। उसने निशाना सादिक की तरफ साधा, लेकिन बादशाह ने देख लिया। बादशाह ने सादिक को धक्का दिया और वह तीर बादशाह के हाथ में जा लगा। सादिक का खून खौल उठा।
उसने अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से उस फकीर की तरफ फेंकी जो सीधा उसके सीने में जाकर धंसी। फकीर वहीं ढेर हो गया। बादशाह के जिस्म में जहर फैलने लगा था और उनके चेहरे की रंगत नीली पड़ने लगी थी। सादिक पागलों की तरह हकीम को तलाशने लगा। उसने बादशाह को अपने कंधों पर उठाया और हकीम के घर की तरफ दौड़ा। रास्ते में उसे वही लोग मिले जो कल तक उसे जासूस कह रहे थे। आज वही लोग सादिक के पीछे दुआएं मांगते हुए चल रहे थे। सादिक ने हकीम के दरवाजे पर पहुंचकर गुहार लगाई। हकीम ने बादशाह का मुआयना किया और कहा कि जहर बहुत तेज है, इसे सिर्फ एक ही चीज काट सकती है और वह है इस पहाड़ की चोटी पर खिलने वाला सफेद फूल जो साल में सिर्फ एक बार खिलता है। सादिक ने घड़ी की तरफ देखा। सुबह होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे। उसने बिना सोचे समझे फिर से पहाड़ की तरफ दौड़ लगा दी। उसके जिस्म में अब जान नहीं बची थी, लेकिन उसका इरादा फौलाद का था। वह उसी पहाड़ पर चढ़ने लगा जहां से वह अभी गिरकर आया था। बर्फीली हवाएं उसके चेहरे को चीर रही थीं। वह चोटी पर पहुंचा तो वहां चारों तरफ बर्फ थी। उसे वह फूल कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गया और खुदा से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगा। तभी चांदनी की एक किरण एक चट्टान के पीछे पड़ी और वहां उसे वह चमकता हुआ सफेद फूल नजर आया। सादिक ने फौरन वह फूल तोड़ा और नीचे की तरफ भागा। वह गिरता पड़ता हकीम के पास पहुंचा। हकीम ने उस फूल का अर्क निकालकर बादशाह को पिलाया। कुछ ही पलों में बादशाह की सांसें बहाल होने लगीं और उनकी आंखों में रोशनी वापस आ गई। सादिक वहीं फर्श पर ढेर हो गया। उसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। अगले कई दिनों तक सादिक बेहोश रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक शाही बिस्तर पर पाया। उसके सामने बादशाह सलामत बैठे थे, जिनकी आंखों में सादिक के लिए बाप जैसा प्यार था। बादशाह ने कहा कि सादिक, तूने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी और इस सल्तनत की जो हिफाजत की है, उसका बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। बादशाह ने सादिक को अपने पास बिठाया और कहा कि आज से तुम मेरे सलाहकार नहीं बल्कि मेरे उत्तराधिकारी हो, क्योंकि इस मुल्क को एक ऐसे सुल्तान की जरूरत है जिसका दिल आवाम की तरह धड़कता हो। सादिक खामोश था, क्योंकि वह जानता था कि सिंहासन का रास्ता कांटों से भरा होता है। उसने महल की खिड़की से बाहर देखा, जहां मोती धूप में सो रहा था और उसकी पूंछ रह रहकर जमीन पर थपथपा रही थी। सादिक की नजरें उस दूर से आते धूल के गुब्बार पर टिकी थीं, जो तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा हुई। क्या यह फिर से कोई जंग का पैगाम था या कुदरत का कोई नया इम्तिहान? सादिक ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई, जो अब एक सुनहरे म्यान में रखी रहती थी, और बादशाह से इजाजत लेकर घोड़े पर सवार हो गया। मोती भी फौरन जाग गया और अपने मालिक के साथ दौड़ने लगा। जैसे जैसे वह धूल का गुब्बार करीब आया, सादिक को घोड़ों की टापें सुनाई देने लगीं। जब वह बिल्कुल करीब पहुंचा तो देखा कि यह कोई दुश्मन की फौज नहीं थी, बल्कि फटे हाल और भूखे प्यासे लोगों का एक बहुत बड़ा काफिला था। यह लोग पड़ोसी मुल्क से आए थे, जहां एक जालिम हुक्मरान ने तबाही मचा रखी थी। काफिले के सबसे आगे एक बूढ़ी औरत थी, जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। सादिक ने जब उन लोगों की बेबसी देखी तो उसका दिल भर आया। उसे अपना वह वक्त याद आ गया जब वह खुद 2 रोटी के लिए दर दर भटकता था। वह समझ गया कि बादशाहत सिर्फ तख्त पर बैठने का नाम नहीं है, बल्कि इन दुखी दिलों पर मरहम रखने का नाम है। सादिक ने उन लोगों को शहर के अंदर आने की दावत दी और उनके खाने पीने का इंतजाम अपने हाथ में लिया। वह खुद उन गरीबों के बीच बैठकर उन्हें खाना खिलाता और उनकी तकलीफें सुनता। बादशाह ये सब देखकर बहुत खुश थे और उन्हें यकीन हो गया था कि सादिक ही इस सल्तनत का असली वारिस है। कुछ दिन गुजरे और शहर में अमन और चैन लौट आया। एक शाम सादिक अपनी हवेली के आंगन में बैठा मोती के साथ खेल रहा था। तभी एक सिपाही ने आकर खबर दी कि महल के गुप्त तहखाने में एक पुरानी दीवार गिर गई है और वहां से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। सादिक फौरन वहां पहुंचा। उसने देखा कि मलबे के नीचे एक बहुत बड़ा दरवाजा छिपा हुआ था, जो सदियों से बंद था। सादिक ने अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से उस दरवाजे का ताला तोड़ दिया। अंदर कदम रखते ही उसे खुशबू का एक झोंका आया। वह कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जहां पुराने बुजुर्गों के हाथ के लिखे हुए नुस्खे और दुनिया भर का इल्म
इल्म छुपा था। सादिक को समझ आया कि उसके बाप ने जिस असली खजाने की बात की थी वह यही था। सादिक ने उन किताबों को पढ़वाना शुरू किया और उसे पता चला कि उसके खानदान का असल मकसद सिर्फ तलवार चलाना नहीं बल्कि लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करना था। उसने उन किताबों की रोशनी में रियासत के कानून बदले और जुल्म का खात्मा किया। वक्त गुजरता गया और सादिक एक बेहद कामयाब और रहमदिल सुल्तान के तौर पर मशहूर हो गया। उसने कभी अपनी उस पुरानी गरीबी को नहीं भुलाया। वह आज भी महीने में एक बार अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह पर जाकर बैठता और अपनी मां को याद करता। मोती अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन वह आज भी सादिक के बिस्तर के पास ही सोता था। एक दिन जब सादिक दरबार में बैठा था तो उसने ऐलान किया कि वह अब अपनी बाकी की जिंदगी खुदा की इबादत और इंसानों की सेवा में गुजारना चाहता है। उसने अपने सबसे ईमानदार सिपाही को तख्त सौंपा और खुद एक फकीर का लिबास पहनकर महल से बाहर निकल गया। उसके साथ सिर्फ उसका वफादार मोती था। गांव के लोग अपनी आंखों में आंसू लिए अपने सुल्तान को विदा कर रहे थे। सादिक ने जाते जाते सबको यही नसीहत दी कि दुनिया की हर चीज फानी है, बस नेक काम और दूसरों की दुआएं ही साथ जाती हैं। वह चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी एक पुराने दरख्त के नीचे गाड़ दी और वहीं एक छोटी सी कुटिया बना ली। लोग आज भी उस जंगल के रास्ते गुजरते हैं तो उन्हें एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई देती है जो मोहब्बत और भाईचारे के किस्से सुनाता है। मोती आज भी उस कुटिया के बाहर पहरा देता है और वहां आने वाले हर मुसाफिर का स्वागत करता है। सादिक ने अपनी जिंदगी की तमाम जंगें जीत ली थीं क्योंकि उसने अपने नफ्स को हरा दिया था। वह यतीम लकड़हारा अब दुनिया की नजर में एक वली और एक महान रूह बन चुका था। उसकी कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि ईमानदारी और सब्र का फल कितना मीठा होता है। सादिक की आंखों में अब एक ऐसा सुकून था जो बड़े बड़े बादशाहों को भी मयस्सर नहीं होता। वह ढलते सूरज को देखता और मुस्कुरा देता क्योंकि उसे पता था कि उसने अपना हक अदा कर दिया है। जंगल की ठंडी हवाएं अब उसे डराती नहीं थीं बल्कि लोरी सुनाती थीं। मोती ने अपना सिर सादिक के कदमों में रख दिया और दोनों ने गहरी शांति के साथ उस ढलते हुए सूरज की लालिमा में खुद को खो दिया। सादिक की सादगी और उसके नेक इरादों ने उस बंजर जमीन को फिर से गुलजार कर दिया था और अब वहां सिर्फ खुशियों के फूल खिलते थे। मुल्क की तारीख में सादिक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, जो हमेशा जलने वाले चिराग की तरह लोगों को रास्ता दिखाता रहेगा। सादिक की रूह को अब उस ममता की छांव मिल चुकी थी जिसकी तलाश में वह बरसों से भटक रहा था।